मैं इमरान खान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देखते रहें, इस चक्कर में मैं गिरफ़्तार हो गया हूँ। और हुआ ये है कि सारी सूरत-ए-हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो फिर मैं गिरफ़्तार हो चुका हूँगा, और अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे तो फिर मैं गिरफ़्तार नहीं हुआ। गिरफ़्तारी की वजह क्या है, मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। क्योंकि हम ना इस वक्त खुश हैं और ना ही महफूज हैं। ये वीडियो मैं एक इंतहाई बोझल दिल से बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे बड़े भाई और पूरे पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तानी कौम की आवाज़ इमरान रियाज़ खान, जिन्हें लापता कर दिया गया है, उनके हवाले से इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो इस वक्त कहाँ हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में कल समाअत तो हुई, लेकिन मामला इससे बहुत ज़्यादा संगीन है। जा रहे हैं सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान की गिरफ़्तारी के ऊपर, जिनको सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया है। इसके पीछे क्या मकासद थे, बात करते हैं हम राना मारूफ सर से, हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग तो खड़े रहेंगे, हम लोग खड़े रहेंगे जब तक बाहर नहीं आते, जब तक हमारे सामने नहीं आते। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, দেশ বা দেশের বাইরে যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখছেন সকলকে অনুরোধ করব দয়া করে একটু পুরো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, পাকিস্তানের জনপ্রিয় সংবাদকর্মী ইমরান রিয়াজ খান তিনি নিখোঁজ প্রায় 3 দিন ধরে, তার কোনো সন্ধান মিলছে না। একটা ভিডিওতে দেখা যায় ন্যাব সদস্যরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া, ইমরান খানকে গ্রেপ্তারের পরের দিন এই গণমাধ্যম কর্মীকে ওঠানো হয় একটি হোটেল থেকে, এবং সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় রেখেছে এটার সন্ধান কেউ দিতে পারছে না এখনও পর্যন্ত। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বলছে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তাহলে যে স্পষ্ট সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে সেই গণমাধ্যম কর্মী ইমরান রিয়াজ খানকে গ্রেপ্তার করেছে ন্যাব, তাহলে কেন প্রশাসন কর্মকর্তারা অস্বীকার করছে? তাহলে কি তাকে গুম করে তার প্রাণনাশের আশঙ্কা রয়েছে? প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, অনেকেই অনেক ধরনের মতামত পোষণ করছে। পাকিস্তানে এটা নিয়ে আবারও নতুন করে উত্তাল শুরু হয়েছে। পাকিস্তানে নতুন করে আবারও রীতিমতো তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে এই গণমাধ্যম কর্মীর নিখোঁজে। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, ইমরান খানের পক্ষে কথা বলার কারণে, ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে সংবাদ প্রচার করার কারণেই এমনটা হয়েছে বলে দাবি করছে অনেকেই। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, চলুন কথা না বাড়ি আমরা সেই পাকিস্তানের গণমাধ্যম কর্মী ইমরান রিয়াজ খান তিনি গ্রেপ্তারের আগে কি বলেছিলেন তার সর্বশেষ ভিডিও বার্তায় তিনি কিন্তু বলেছিলেন তিনি গ্রেপ্তার হতে পারেন, এবং তাকে যদি গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে তাকে জানে মেরে ফেলা হবে, তাকে আর ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। তার কারণ তিনি বর্তমান সরকার শেহবাজ শরীফের কথা শোনে না এবং তার দেখানো লাইন অনুযায়ী তিনি চলে না, কারণ পাঁচ চাটুকারি করে তিনি গণমাধ্যমে কাজ করবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন। এ কারণেই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে ইমরান খানের পক্ষে কথা বলার জন্য। এ সমস্ত বিষয় কিন্তু আগে জানিয়েছিলেন সর্বশেষ একটা ভিডিওতে ইমরান রিয়াজ খান। তিনি কি বলেছিলেন চলুন সেটা দেখে আসি, এবং পাকিস্তানের ব্যক্তিবর্গরা কিভাবে প্রোটেস্ট করছে এই গণমাধ্যম কর্মীর মুক্তি নিয়ে সেটা দেখবো, তারপরে কথা বলবো। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देखते रहें, इस चक्कर में मैं गिरफ़्तार हो गया हूँ। और हुआ ये है कि सारी सूरत-ए-हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो फिर मैं गिरफ़्तार हो चुका हूँगा, और अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे तो फिर मैं गिरफ़्तार नहीं हुआ। गिरफ़्तारी की वजह क्या है, मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तब से लेकर अब तक मैं कंटिन्यूसली आपको ख़बरें दे रहा हूँ। मैंने 4 मरतबा अपनी नौकरी गंवाई है, मुझे बहुत दफ़ा धमकियाँ दी गई हैं, बहुत दफ़ा ख़तरनाक नताइज के बारे में आगाह किया गया है, बुलवाया गया है, मैं मिलता भी रहा हूँ लोगों से, और लोग इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें कहते भी रहे हैं मुझे। हर तरह की कोशिश की गई है, ये भी कहा गया कि आपके केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, आपके मामलात को रिज़ॉल्व कर देते हैं, आपकी नौकरी का बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में आप अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लें। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक मैंने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, और अपना मौक़िफ़ ना तब्दील करने की मैंने बार बार सज़ा काटी है। मेरे घर की दीवार की बैक साइड पे मेरे अम्मी अब्बू के कमरे के पास लाकर बंदा गोलियां मार मार के इन्होंने मारा, ताकि वो चिल्लाता रहे और हमारे घर के अंदर खौफ फैले। कभी ड्रोन भेज देते थे, कभी मेरा घर गिराने के लिए मशीनें भेज देते थे, हमारा सारा कारोबार बंद कर दिया, मेरे भाइयों को हरासा किया, मुझे हरासा किया, मेरी फैमिली को हरासा किया, और फैमिली को नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ भी मुझे दी गई। और अभी भी जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना था, और मैंने अपने जाने का प्रोग्राम फौरी तौर पे कैंसिल किया था, ये सोच कर के पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा। लेकिन बजाय इसके कि कवरेज करने दी जाती, बजाय इसके कि बात करने दी जाती, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। मैं पिछले 2 दिनों से मुख्तलिफ़ इलाकों में घूम कर अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
कभी कहीं से रिकॉर्ड करते हैं जाके, कभी कहीं रिकॉर्ड करते हैं जाके, अपलोड कहीं और से करते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं है और दरबदर होकर हम अपना काम कर रहे हैं। दरबदर होने की वजह ये है कि हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। मैं और मेरे साथी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं लगातार। मेरे घर वालों को हरासा किया गया है, मेरे घर को 2 मरतबा घेरा गया है और कोशिश की गई कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। मैं ये चीज़ें इससे पहले वीडियोस में आपको इसलिए नहीं बता रहा था कि और बहुत बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रायवंड से बाकायदा अहकाम जारी किए गए हैं कि हर हाल में मुझे गिरफ़्तार किया जाए। और पाकिस्तान में सोशल मीडिया तो पहले ही बंद है, तो ये आवाज़ें जो रह गई हैं उनको भी बंद कर दिया जाए और जो बोलने वाले का हक है वो छीन लिया जाए। ये मैं बात करना चाहता हूँ, खबरें देना चाहता हूँ और फिज़िकली तो मैं चीज़ें नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, खबरें देता हूँ और मेरा एक मौक़िफ़ है रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़, मेरा एक मौक़िफ़ है बंद कमरों में होने वाले फ़ैसलों के ख़िलाफ़, मेरा एक मौक़िफ़ है एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़। तो उसकी सज़ा तो मैं काटता हूँ और लगातार काट रहा हूँ। पिछले 1 साल से जिस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसे हालात का सामना करना पड़े। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सियासतदानों की, वैसे तो मैंने थोड़े दिन पहले भी ये कहा था, इतनी औकात नहीं होती कि वो इस किस्म की हरकतें करके किसी के लिए ज़मीन तंग कर दें, ना वो ये कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के और सियासतदानों के इस वक्त मफादात मिले हुए हैं, तो एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं, एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम भी कर रहे हैं और सियासतदान भी सहूलतकार बने हुए हैं। और ये तो बड़ी पुरानी यानी जो जिनको आपका नुक्ता नज़र सूट नहीं कर रहा होता, वो सियासतदान आपको दीवार के साथ लगाना चाहता है, लेकिन उसकी इतनी कैपेसिटी होती नहीं है कि वो ये कर सके। लेकिन जिस तरीके से आजकल इस्टेब्लिशमेंट के और पीडीएम की हुकूमत के ताल्लुकात हैं, तो ये ऐसा करने की कैपेसिटी में आए हुए हैं फ़िलहाल। और मैं अपने मौके पे अभी भी कायम हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट अगर बीच में से निकल जाए तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अब ज़रा आ जाए मेरी गिरफ़्तारी की वजह की तरफ। तो मुझे जनाब गिरफ़्तार कर लिया गया है सियालकोट एयरपोर्ट से। मैं ओमान जा रहा था सियालकोट एयरपोर्ट से, और वो मैं इसलिए जा रहा था कि एक तो पाकिस्तान के अंदर वीडियोस अपलोड करना हमारे लिए चैलेंज बन गया है। पुलिस और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो हमारे पीछे लगे हुए हैं और कुछ कानून नाफिज करने वाले ऐसे इदारे हैं जो यूनिफॉर्म में भी नहीं हैं, वो भी हमारा पीछा कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हर जगह पे हमें ढूंढते फिर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे मैं हो सकता हूँ वहाँ पे सूंघा जा रहा है, वहाँ पे चेक किया जा रहा है। और अभी तक तो मैं गिरफ़्तार नहीं हुआ जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो मैं सियालकोट एयरपोर्ट से ओमान जाते हुए गिरफ़्तार हो गया हूँगा। और उसकी वजह ये है कि मैं बात करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। हमने जब मशवरा किया, मैंने अपनी टीम के मेंबर से, बाकी दोस्तों से मशवरा किया और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मशवरा दिया कि आपको बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, फ़िज़िकल अपीयरेंस से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बोलते रहें, आपकी आवाज़ पहुँचती रहे, आपके ज़रिए से ख़बरें मिलती हैं, आपके ज़रिए से इंफॉर्मेशन मिलती है। लिहाजा इंफॉर्मेशन के हुसूल के लिए आपका बोलते रहना ज़रूरी है। और अगर पाकिस्तान में इसी तरह इंटरनेट बंद रहता है या गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे। और इसके बाद प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि शायद मैं गिरफ़्तारी अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। तो प्रोपेगेंडा वो लोग करेंगे जिनका लीडर पाकिस्तान से भागा हुआ है, 4 साल से वापस आने का नाम नहीं ले रहा, उसके भाई की हुकूमत है, इसके बावजूद वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा। और जहाँ तक गिरफ़्तारी अवॉइड करने का मामला है, तो पिछली मरतबा जब एयरपोर्ट से मुझे रोका गया तो मैंने खुद पूछा था FIA से कि क्या आप मुझे गिरफ़्तार करेंगे, तो उसके बाद फिर मुझे गिरफ़्तार किया गया था और मैंने किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं की थी, बल्कि मैं बहुत कोऑपरेट करके उनके साथ चला गया था। ये FIA वाले आपको गवाही देंगे। और इसके अलावा जब पुलिस मुझे गिरफ़्तार करने आई तो उस पुलिस वाले ने भी जिसको मैंने गिरफ़्तारी दी थी, हालांकि मेरे पास वहाँ पे ज़मानत मौजूद थी, अदालत ने मना किया हुआ था इस्लामाबाद की प्रेमिसेस में, लेकिन मुझे वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। जब मुझे गिरफ़्तार किया गया वो पुलिस वाला आज भी गवाही देगा। उसने कहा था, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने बड़ी दलेरी से और मर्दानगी से आपने गिरफ़्तारी दी, हमें डर था कि आप अपनी गाड़ी को लॉक कर लेंगे। मेरी गाड़ी जो है वो आर्मड गाड़ी थी, अगर मैं उसको लॉक कर लेता तो फिर वो मुझे उसमें से बाहर नहीं निकाल सकते थे। उनको इस बात का खदशा था और वहाँ पे रश लग जाता, लोग जमा हो जाते, एक तमाशा क्रिएट हो जाता। लेकिन मैंने निकल कर गिरफ़्तारी दे दी थी उस वक्त भी। गिरफ़्तारी का मसला नहीं है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं दोबारा गिरफ़्तार हो चुका हूँ। मेरा मौक़िफ़ जो कल था वही आज है। मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हट सकता हूँ। मेरे मुल्क का मसला है। मेरे मुल्क का मसला ये है कि मेरे मुल्क का फ़ैसला मेरे मुल्क के अवाम करेंगे। 23 करोड़ लोगों का फ़ैसला बंद कमरों के अंदर बैठे हुए चंद दिमाग नहीं कर सकते। वो दिमाग कितने भी ज़हीन हों, वो 23 करोड़ लोगों की इज्तिमाई दानिश का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शंस के अंदर है। अब जितना अरसा भी मैं अंदर रहूँगा मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, और इसी आवाज़ को बचाने के लिए मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा था।
बिल्कुल वैसे ही जैसे शहीद अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए थे, वो भी सिर्फ गिरफ्तारी अवॉइड करना चाहते थे ताकि उनकी आवाज़ बंद ना हो और वो अपनी बात करते रहे हैं। आपको याद होगा उनकी शहादत वाले दिन सीनियर ऑफिसर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, DGISPR ने और DGISI ने। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि अगर हम चाहते तो हम ना जाने देते, तो मैं नहीं जा पाया। इसका मतलब आप समझ जाएं कि वो लोग नहीं चाहते कि मैं ट्रैवल करूं, और मैं एक जर्नलिस्ट हूं, बोलना मेरा हक है। और मैंने आज तक कोई एक जुमला ऐसा नहीं बोला जिस पे ये कानूनी तौर पे मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने जो बात की कानून और आइन के दायरे के अंदर रह कर की है। मेरी बात किसी को पसंद आए किसी को ना आए, कल तक मेरी बात कुछ लोगों को सूट करती थी, आज कुछ और लोगों को सूट करती है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करती है, वो बड़े खुश है। हो सकता है कल मेरी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सूट ना करे और वो मेरे से नाराज़ हो जाएं। ये चलता रहता है, लेकिन सहाफ़ियों को बोलने का हक रहना चाहिए। मैंने थोड़ा अर्सा पहले एक तकरीर करते हुए भी यही कहा था कि ये आग आप सबके घर तक पहुँचेगी। मेरे घर तक पहुँची है, हमारा जीना हराम किया हुआ है, हम दरबदर हुए हैं, सिर्फ मैं नहीं मेरी फैमिली भी। और हालात यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि मुझे पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ रहा था जिस वक्त मुझे गिरफ्तार किया हुआ है। और याद रखिएगा, मैं पाकिस्तान से 3 मरतबा पहले भी बाहर गया हूँ। अभी उम्रा करके आया हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारी फैमिली कह रही थी कि पाकिस्तान वापस मत आओ, मैं वापस आया। मैं दुबई गया था, मुझे सारी फैमिली कह रही थी पाकिस्तान वापस मत आओ, मैं वापस आया। मैं अक्टूबर में गया था, जब आपको याद होगा कि उस्मा बुखारी साहबा ने और कुछ लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया था। मुबशर लुकमान साहब मेरे दोस्त रहे हैं, उन्होंने भी मजाक उड़ाया था कि ये पाकिस्तान से बाहर क्यों भाग गया। तो मेरा 2 दिन का काम था, मैं वापस आ गया था। और मेरे वापस आने के बाद उनको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। मैं अभी भी कहीं भाग कर नहीं जा रहा, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। मेरा पाकिस्तान के बगैर गुजारा ही नहीं है, मैं इस मुल्क के बगैर रह ही नहीं सकता। वजह सिर्फ इतनी है कि मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे अरशद शरीफ बोलना चाहता था। जब तक जिंदा हूँ तब तक बोलूँगा, जब तक बाहर हूँ तब तक बोलूँगा। बाहर निकालेंगे फिर बोलूँगा। अब मुझे अंदर बंद कर दिया है, दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जो है वो अगर ज़िंदगी दे और मुझे बाहर निकाले, आज़ादी दे, ताकि आप मेरी आवाज़ सुनते रहें। मेरी आवाज़ अगर आपने सुननी है तो ख़ास तौर पे मेरी माओ बहनों से और ख़वातीन से गुजारिश है कि वो मेरे लिए दुआ करें। मुश्किल वक्त है, ये भी कट जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि हम ना इस वक्त खुश हैं और ना ही महफूज हैं। ये वीडियो मैं एक इंतहाई बोझल दिल से बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे बड़े भाई और पूरे पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तानी कौम की आवाज़ इमरान रियाज़ ख़ान, जिन्हें लापता कर दिया गया है, उनके हवाले से इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो इस वक्त कहाँ हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में कल समाअत तो हुई, लेकिन मामला इससे बहुत ज़्यादा संगीन है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अल्लाह करे वो दुरुस्त ना हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि मैंने आज तक आप सब से ये नहीं कहा कि इस चीज़ को शेयर करें, ये करें, वो करें। लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा कि आज आपने इमरान रियाज़ की आवाज़ बनना है। वो आपकी आवाज़ बनता था, वो आपके लिए बोलता था, वो आपके हुकूक के लिए आवाज़ उठाता था। आज आपने उसके लिए आवाज़ उठानी है। मैं पूरी लाहौर हाई कोर्ट की जो समाअत है उसका अहवाल आपके सामने भी रखता हूँ, और कुछ बातें हैं जो बड़ी अहम हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से भी कुछ आज दिल की बातें करनी हैं, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से भी। लेकिन पहले मैं आपके सामने कल की जो समाअत है उसका अहवाल रख दूं, क्योंकि जारी बात है पूरी कौम की नज़रें, और इतने इश्यूज़ में फंसा दिया गया, इतना कुछ मेरे मुल्क में हो रहा है। और ये मकबूल जान साहब को रात को उठा लिया गया, आफ्ताब साहब को उठाया गया था। ये केस मियां अली इशफाक साहब जो है उनकी लॉ फर्म ने लाहौर हाई कोर्ट में पुटअप किया, आफ्ताब इकबाल साहब का केस और इमरान रियाज़ साहब का केस। लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अमीर खान भट्टी साहब, बड़े दबंग अंदाज में कल उन्होंने समाअत की। उन्होंने पहले कहा कि इन्हें पेश किया जाए। आफ्ताब इकबाल साहब को पेश किया गया। उनके जो ऑर्डर्स थे डिटेन करने के, उन्हें वो गैर कानूनी करार दे दिए गए। इमरान रियाज़, जिन्हें सियालकोट के एक थाने से गिरफ़्तार किया गया था, और सियालकोट एयरपोर्ट की हदूद में जो थाना पड़ता है उससे अरेस्ट किया। फिर हमें पता चला कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनके हवाले से जो MPO है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, उसके तहत इमरान रियाज़ को 30 दिन के लिए सियालकोट की डिस्ट्रिक्ट जेल भेजने का कह दिया हुआ था। अब डिप्टी कमिश्नर साहब जो कि शरीके जुर्म है, उनसे पूछा जाए
कि आपने उसमें लिखा है कि इमरान रियाज जो हैं वो लोगों को इश्ताल दिला रहे थे। और इतना अजीब सा वाक़या है कि आप देखें कि इमरान रियाज इश्ताल दिलाने के लिए थाना एयरपोर्ट के करीब एक गांव में गया। एयरपोर्ट के करीब थाना एयरपोर्ट सियालकोट की हदूद में एक गांव में गया। इमरान रियाज को वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन जारी बात है कार्रवाई डालनी थी। एयरपोर्ट से आप एक बंदे को गिरफ्तार कर रहे हैं और वो बैरून मुल्क इससे पहले भी 3 दफ़ा गया पिछले 1 साल में, 2 दिन में वापस आ गया। वो पाकिस्तान के बग़ैर कुछ नहीं है, पाकिस्तान के बग़ैर उससे रहा ही नहीं जाता। वो अपने किसी काम के लिए जा रहा था, उसने पहले भी जाना था, और ये नहीं है कि वो फ़रार हो रहा था या ऐसा वैसा कुछ। उसके बाद जी इन्होंने वारदात डालनी थी और इन्हें पता था कि ये इल्लीगल डिटेन करने के ऑर्डर्स हैं। एमपीओ के तहत डिटेंशन ऑर्डर्स आर कम्प्लीटली इल्लीगल, दे आर कम्प्लीटली बेसलेस। और जैसे आफ्ताब इकबाल साहब के डिटेंशन ऑर्डर्स उड़ा के रख दिए लाहौर हाई कोर्ट ने, इंशाल्लाह औरिया मकबूल जान साहब को भी ये गायब नहीं कर पाएंगे और उनके ऑर्डर्स भी उड़ा दिए जाएंगे। हमारे लिए इस वक्त जो है ज़मीन तंग की जा रही है। अब यहाँ पर इमरान रियाज जो हैं उनके साथ इन्होंने बड़ी वारदात डाली और इमरान रियाज जो है अब ये कंसर्न बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कल की समात आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि नो वन इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन इज टेकिंग द ओनरशिप। और समात अब सोमवार तक मुलतवी है, बट वी कैन नॉट वेट टिल मंडे। लेट मी बी वेरी क्लियर, वी कैन नॉट वेट टिल मंडे। वी आर वे टू कंसर्न्ड। हम शहीद अरशद शरीफ का गम नहीं भूले, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, हमारे पास कोई बंदूक नहीं है, हमारे पास कोई आपके साथ लड़ने की सकत नहीं है। हम सहाफ़ी हैं, हम आपकी बंदूक की नाली के आगे अपने जो कलम है उसकी नोक ही कर सकते हैं, उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिर जी जब कल आफ्ताब साहब को तो इन्होंने रिहा कर दिया, इमरान रियाज को नहीं पेश किया। फिर शाम 6 बजे तक का वक्त था इमरान रियाज को हाईकोर्ट पेश करने का। आईजी जेल खाना जात और सीसीपीओ लाहौर जो है वो अदालत में मौजूद रहे, लेकिन इमरान रियाज साहब जो है उन्हें पेश नहीं किया गया। इमरान रियाज की बाजियाबी केस की कवरेज से सहाफ़ियों को रोकने के लिए पंजाब पुलिस मुतहर्रिक भी हुई और सीनियर सहाफ़ी जो हैं उन पर तशद्दुद भी किया गया और सहाफ़ियों से तज़हीक आमेज़ रवैया भी रखा गया लाहौर हाई कोर्ट में। मतलब इफ़ यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड तो आपको क्या मसला है, करने देना कवरेज। कौन है जो कवरेज से रोक रहा है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान रियाज की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत जब रात गए शुरू हुई तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने मोहम्मद रियाज की दरख्वास्त पर, जो कि उनके वालिद हैं, समाअत पुलिस की जानिब से ये कहा, पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया कि सहाफ़ी इमरान रियाज से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवा दी है। अदालत ने रोज़नामचा जो होता है उसकी कॉपी दिखाने की भी हिदायत की। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि बताएं इमरान रियाज को कहाँ से गिरफ्तार किया गया। डीपीओ सियालकोट ने कहा कि इमरान रियाज को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। डीपीओ सियालकोट ने फिर यह भी कहा कि इसके बाद उन्हें कैंट थाने मुंतकिल किया गया, कैंट पुलिस स्टेशन से उन्हें जेल मुंतकिल किया गया। बयान हल्फी देने पर इमरान रियाज को जेल से रिहा कर दिया गया। कह रहे हैं कि हमने बयान हल्फी दिया। कितने अच्छे, कितने आप मासूम। बाकियों को छोड़ो बयान हल्फी पे, छोड़ो बाकी जो पीटीआई के लीडर पकड़े हैं उन सबको। आफ्ताब इकबाल साहब को छोड़ देते बयान हल्फी पे, उन्हें क्यों नहीं छोड़ा? इमरान रियाज से बड़ा प्यार है, आपने इमरान रियाज को छोड़ दिया और उसके बाद वो लापता हो गया, नामालूम हो गया। अच्छा जी, और इस सब के अंदर डीपीओ सियालकोट के वाले से चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने यह भी लिखा कि इस नोटिफिकेशन में तो लिखा है कि 30 दिनों के लिए नज़रबंद हुआ है, तो इस वक्त इमरान रियाज कहाँ है? इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अदालत ने डीपीओ के बयान पर इजहार बरहमी भी किया और कहा कि आपकी ये पट्टियाँ, आपके ये जो बैज हैं, ये उतरवा कर आपको भेजूंगा। और इसमें डीपीओ साहब ने कह दिया कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से दरख्वास्त थी, इस दरख्वास्त पर हमने अमल दरामद किया। और चीफ जस्टिस साहब ने एक चीज़ अच्छी की कि उन्होंने इमरान रियाज की जेल से रिहाई की फुटेज तलब कर ली। कब जेल से रिहा हुए, किस टाइम हुए, वो फुटेज आप पेश करें और सारा रिकॉर्ड जमा करवाएं। इमरान रियाज जो है उनके वालिद ने ये बात कही है कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मैंने अपने बच्चों को सच बोलना सिखाया, ये मेरा कसूर है, ये मेरा जुर्म है और मुझे इसके लिए फांसी लगा दो। मेरे बच्चे को क्यों पकड़ा हुआ है? उनकी फैमिली इस वक्त जिस कर्ब और जिस दुख से गुजर रही है, ये जो अनसर्टेनिटी होती है, ये जान ले लेती है। और मैं बड़ा इमोशनल अपने आप को नहीं करना चाह रहा, लेकिन जारी बात है कि हमारे दिल दुखे हुए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पीर तक समाअत तो मुलतवी की गई है और चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि आप जो बोलेंगे सोच समझ कर बोलिएगा। और इन्होंने कहा कि मैं सबको फिक्स कर दूंगा, मैं किसी को स्पेयर नहीं करूंगा, विच इज़ ग्रेट।
इस वक्त इमरान रियाज साहब जो है, उनकी अहलिया जो है उन्होंने भी ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है कि आप सब सहाफ़ी हजरात इमरान रियाज के लिए आवाज़ उठाएं। मेरी पहले तो आप सब से ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि इमरान रियाज भाई जो हैं उनके हवाले से जितने ज़्यादा आप ट्वीट्स कर सकते हैं, और जो हैशटैग है वो आपने हैशटैग रिलीज़ इमरान रियाज खान इस्तेमाल करना है। मैं एक ख़त अब से कुछ देर में लिखने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, पाक टीवी 24 से मेरा नाम हिफ्ज़त ताहिर है। बात करने जा रहे हैं सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की गिरफ़्तारी के ऊपर, जिनको सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया है। इसके पीछे क्या मकासद थे, बात करते हैं हम राना मारूफ सर से, हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि इमरान रियाज खान कहाँ ट्रैवल कर रहे थे सियालकोट से? इमरान रियाज खान जो है वो 10 मई की रात को 11 मई की सुबह को 4 बजे की फ़्लाइट से सियालकोट से ओमान के लिए ट्रैवल करना चाह रहे थे, जिसके लिए वो 2 बजे एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं और 2:30 बजे उनका बोर्डिंग पास जारी होने के बाद वो इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जो है वो मुतहरक हो गए थे। सर ये बताएं, मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए वो यहाँ से ट्रैवल करना चाह रहे थे या उनका कोई पर्सनल टूर था? देखें, चूँकि मेरी उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए ये मेरे इल्म में पर्पज़ ऑफ ट्रैवल तो नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैंने उनका वैलिड वीज़ा देखा है ओमान के लिए, वो सिर्फ 3 वीक्स का जो है वो ड्यूरेशन का वीज़ा है, और उसी के मुताबिक ही उनकी जाने की टिकट भी थी और आने की टिकट भी थी। तो इस लिहाज से जो है वो अपने किसी प्रोग्राम या अपने किसी बिज़नेस या अपने किसी फैमिली फ्रेंड जो है वो किसी भी मकसद से जो है वो जा रहे हो सकते हैं। सर लाहौर हाई कोर्ट में हेयरिंग थी उनकी, प्रोड्यूस किया गया था उनको, जो कि नहीं हो पाए थे, और पुलिस की तरफ से भी नहीं कोई भी इस तरह की मामलात नज़र आए थे। मुझे ये बताएं कि आपसे उनकी कितनी बात हुई है, आपको मालूम है वो कहाँ पे हैं? देखें, मेरी उनकी फ़ैमिली से तो बात हुई है, इस दौरान में मेरी जो है वो इमरान रियाज से बात नहीं हो सकी, क्योंकि दौरान गिरफ़्तारी भी और दौरान जो है वो उनकी डिटेंशन पुलिस ने किसी तरह की कोई कॉपरेशन नहीं दिखाई। जो पुलिस की बेसिक ज़िम्मेदारी है कि वो जब भी किसी को गिरफ़्तार करेंगे, ये SOPs हैं, ये पुलिस के अपने जारी करदा बनाए हुए SOPs हैं कि उन्होंने फ़ौरी तौर पे एक तो गिरफ़्तारी की वजह से आगाह करना है, और दूसरा किसी भी फैमिली के मेंबर से जो है वो उन्होंने उनको इन कॉन्टेक्ट करवाना है, उनसे बात करवानी है और फैमिली को मिलने की एक्सेस देनी है। और अगर जो है वो उसकी अपने वकील से जो है वो अपने लीगल अटर्नी से बात करने की ख्वाहिश हो या रब्ता करने की ख्वाहिश हो, तो उसको भी पुलिस ने जो है वो बिल्कुल एज़ इट इज़ जो है वो फैसिलिटेट करना है। ये उसका बुनियादी राइट है जिससे उसे महरूम रखा गया है, और पुलिस ने ना उनकी फैमिली से रब्ता करने दिया है और ना ही उनके वकील से रब्ता करने दिया। सर कोई भी वीडियो जब भी वो बनाते हैं, अगर जनरली मैं बात करूं तो वो उसमें पहले ही बता देते हैं कि मैं बताने जा रहा हूं कि आगे ये होने वाला है। इसी तरह जब वो ट्रैवल करने जा रहे थे, इसी तरह की एक वीडियो सामने आई थी। मुझे ये बताएं सर, जितनी बेबाकी के साथ वो सीनियर सहाफ़ी रिपोर्टिंग करते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कहीं ना कहीं उनको गिरफ़्तार करने के पीछे यही तो मकसद नहीं है? देखें, ज़ादी सहाफ़त जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। आप, मैं और बाकी अवाम सबका हक़ है कि हम जो है वो आवाज़ उठा सकें किसी भी गलत जो है वो होने वाले अमल के ख़िलाफ़। अब वो गलत वो होने वाला अमल जो कर रहा है उसको तो बुरा लग सकता है, लेकिन अगर जनरल पैमाने पे उसे देखा जाए तो वो गलत अमल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारा सबका बुनियादी हक़ है। इससे कतई तौर पे महरूम नहीं करना चाहिए। खुदारा मेरी स्टेट से ये अपील है कि आप जो है वो आज़ादी राय को जो है बिल्कुल सलब ना करें, और सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ जो है वो बिल्कुल इसी के पैमाने पे चल रही होती हैं कि वो अपनी आवाज़ जो है वो उठाते हैं किसी भी गलत जो है वो अमल के ख़िलाफ़, किसी भी गलत जो है वो एक्शन के ख़िलाफ़ और किसी भी गलत स्ट्रेटजी के ख़िलाफ़। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर ज़ुबानबंदी कर दी जाती है ना यहाँ पे। जो भी कोई हक और सच की ज़ुबान उठाने लगता है या कोई भी उस पर बात करने लगता है तो उसके साथ यही होता है जो आज इमरान रियाज खान सर के साथ हुआ है। क्या कोई उनके ऊपर FIR थी जिसकी वजह से उनको इस तरह से गिरफ़्तार किया गया? देखें, उनके ख़िलाफ़ जितनी भी FIRs थी जो आज तक जो है वो उनके इल्म में लाई गई हैं, जिनको पहले भी एजेंसीज़ जो है ये जो जितने भी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, FIA की एजेंसीज़ या एंटी करप्शन की एजेंसी, इन तमाम जो है वो इदारों ने पहले भी जो है इनके ख़िलाफ़ मुकदमात को छुपाए रखने की कोशिश की है, जिसकी एप्रीहेंशन की सूरत में हमने पहले भी अदालतों में रिटें फ़ाइल की। इस बात की अब जो है वो वजाहत तलब की कि हमें
हमें जो है वो अगर इमरान रियाज के ख़िलाफ़ किसी तरह का कोई मुकदमा या कंप्लेंट पेंडिंग है तो उसे उससे आगाह किया जाए, ताकि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए, अपनी प्री अरेस्ट बेल को सिक्योर करते हुए उस एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास पेश हो और अपना ट्रू वर्जन, अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए पेश कर सके, जिसके बाद जो है वो तफसीलात समटाइम्स मुहैया की गई और समटाइम्स मुहैया नहीं की गई। लास्ट टाइम भी जो है वो जब इमरान रियाज लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किए गए थे, उससे भी चंद दिन कबल हमने इसी जो है वो खदशात के को पेशे रफ्त रखते हुए, सामने रखते हुए हमने एक रिट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की थी और इसी साइबर क्राइम को जो है वो हमने उसमें पार्टी भी रखा था और इनसे हमने तफसीलात उससे पहले बज़रिया लेटर भी तलब करने की कोशिश की थी, मगर जो है वो FIA की तरफ से कोई कॉपरेशन ना दिखाई गई, ना ही किसी कंप्लेंट की जो है वो तफसीलात दी गई और ना ही अदालत में मुहैया की गई। मगर बाद अज़ां उनको आपके सामने है कि लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया, वो भी मुकदमा फ्रिवलस साबित हुआ, बेबुनियाद साबित हुआ और पहले ही दिन जब उसे अदालत के सामने पेश किया गया, मैं और जो है वो मेरे सीनियर पार्टनर मियां अली इशफाक, हम ही वकील थे, हम ही ने जो है वो इधर अदालत से जो है वो उसको डिस्चार्ज करवाया और हमें अदालतें यहाँ पे जो है वो इंसाफ करती और हर किसी मजलूम की मदद करती जो है वो अभी तक नज़र आ रही हैं। जैसा कि आपने देखा है कि इमरान खान साहब के केस में भी अगर हाई कोर्ट से कोई अच्छा फ़ैसला नहीं हो सका तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अच्छे फ़ैसले की अक्कासी जो है वो ज़ाहिर कर दी और उनकी अरेस्ट को अनलॉफुल अरेस्ट जो है वो ज़ाहिर किया। सर ये बताइएगा नेक्स्ट हियरिंग कब की है? देखें, केस जो है वो कल के लिए फ़िक्स है। इमरान रियाज का केस चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की अदालत में जो है वो लगा हुआ है। कल हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है और बाकी इदारे जो हैं वो होश के नाखुन लें और अपनी ज़िम्मेदारी को जो है वो निभाते हुए बतौर स्टेट फंक्शनरी उसकी बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और कल जो अदालत के सामने उसे प्रोड्यूस करें। अगर खुदा न खास्ता उनकी तरफ से कोई कोताही जो है बरती गई तो हमें अदालत से जो है वो मुकम्मल उम्मीद है कि वो इनके इस तरह के अनजस्टिफाइड, अनलॉफुल और अपनी अथॉरिटी से एक्सेसिव जो है वो इस्तेमाल के जो इक़दामात हैं, इनको अदालत इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर सलब करेगी, स्क्रूटनाइज़ करेगी और इसके ऊपर अदालत जो है वो इनको रेप्रीमांड भी इनके जो है वो गलत जो है वो एक्शंस पे करेगी। हमें अदालत से मुकम्मल एतमाद और उम्मीद है कि अदालत जो है वो उसकी बाजियाबी के लिए ना सिर्फ जो है वो अच्छे फ़ैसले जारी करेगी बल्कि हदायत जो है वो उनको इंश्योर करेगी कि उसे पेश किया जाए। कितने चांसेस हैं सर कल इमरान रियाज खान के पेश होने के? देखें, चांसेस जो है वो तो जिनको हदायत की गई हैं ये उनकी नीयत, उनके अमल पे डिपेंड करता है कि वो उनके एजेंडा क्या हैं और वो किस हद तक जो है वो अपनी कोशिशों को बरूए कार लाते हुए उसको अदालत में पेश करते हैं। सर कुछ अफवाहें भी मिल रही हैं कि इमरान रियाज खान सर पे तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी हालत ठीक नहीं है, इसके बारे में कुछ इल्म है आपको? देखें, जिस तरह के हंगामी हालात पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं और सियासी और सहाफ़ती जो है वो गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं, ये जो है वो आम हालात में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, इस तरह से सहाफ़ियों की गिरफ़्तारियाँ या सियासी गिरफ़्तारियाँ इस हद तक जो है वो कभी नहीं की गई। इन हालात में किसी का कोई भी खदशा आपका, मेरा और उनकी इमरान रियाज की फ़ैमिली का या इमरान ख़ान का, जिन्होंने आज जो है वो अपने इंटरव्यू में बाकायदा तौर पे इस खदशे का जो है वो इजहार किया है, हम तमाम के खदशात जो है वो बिल्कुल जायज़ हैं इस तरह के हालात में कि उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी जो है वो गलत सलूक या गलत अमल जो है वो हो सकता है। मगर हम सब जो है वो अल्लाह से इस बात की जो है वो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह उसे किसी भी बुरे शर से और बुरी तकलीफ़ से महफूज रखे। आमीन। सर, उनकी फ़ैमिली से आपकी आखिरी दफ़ा जो भी बात हुई है, क्या जज्बात थे उनके? उनकी फ़ैमिली इंतहाई करब से गुज़र रही है। उनके वालिद जो है वो इंतहाई गम और परेशानी से गुज़र रहे हैं। उनकी वाइफ़ और उनकी बाकी जो है वो फ़ैमिली का भी यही हाल है। सारे लोग जो है वो इस कर्ब में हैं कि खुदारा हमारे जो है वो इस फ़र्द को, इमरान रियाज को सामने तो लेके आएँ। ये जो कर्ब है कि वो उससे कोई भी एजेंसी क्लेम नहीं कर रही कि उन किसके पास उसकी कस्टडी है, इस कर्ब से तो बाहर निकाला जाए। अगर वो किसी के पास कानूनी तौर पे है तो उसको जो जिस मुकदमे में, जिस कार्रवाई में सामने रखा गया है, उसे उसमें से सामने लेके आना चाहिए और अदालत में पेश करना चाहिए और किसी भी गैर कानूनी अमल से जो है वो परहेज़ करना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया।
हम लोग बात कर रहे थे सर मियां मारूफ से, और हम लोगों ने जाना सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान के बारे में, उनकी फ़ैमिली के क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं। सियालकोट से उनको गिरफ़्तार किया गया है, किस केस में किया गया ये भी हम नहीं जानते। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, আপনারা দেখলেন, এখন আপনারাই বলবেন আপনারা কি বলতে চান, আপনাদের অভিমত ব্যক্তিগত মতামতটা জানাবেন। পাকিস্তানের এই গণমাধ্যম কর্মী ইমরান রিয়াজ খান তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল ন্যাব সদস্য, এবং ন্যাব সদস্য ওঠানোর পরে তাকে কোথায় রাখা হয়েছে এটা এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের কোনো ব্যক্তি বলতে পারছে না। পাকিস্তানের প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সেই গণমাধ্যম কর্মী ইমরান রিয়াজ খানকে ওঠানো হয়নি, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তাকে যদি গ্রেপ্তার না করা হবে তাকে কোথায় রাখা হয়েছে এমন প্রশ্ন সাধারণ জনগণের। যদি ইমরান রিয়াজ খানের কিছু হয় তাহলে ইমরান খানের গ্রেপ্তার ইস্যুর থেকে বড় ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে পাকিস্তানকে। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ খেপে গিয়েছে ইমরান রিয়াজ খান এই গণমাধ্যম কর্মীর গ্রেপ্তার নিয়ে। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান নিজেও কিন্তু তার মুক্তির দাবি জানিয়েছে, এবং তিনি বলেছে তাকে গুম করে দিয়েছে এবং গুম করে তাকে মেরেও ফেলতে পারে। এদের কোনো ভরসা নাই, এদের কোনো বিশ্বাস নাই। আপনারা তো দেখলেনই ইমরান রিয়াজ খান তার সর্বশেষ ভিডিওতে কি বলেছে, আমি আপনাদেরকে দেখালাম সেটা। এখন আপনারা আপনাদের ব্যক্তিগত অপিনিয়ন জানাবেন। এই গণমাধ্যম কর্মীকে গ্রেপ্তার নিয়ে পাকিস্তান তোলপাড়।